Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this beautiful sunflower lip balm cover. आज की ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा लिप बाम कवर बनाएंगे सनफ्लावर के साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत है एंड इट्स रियली इजी। यू कैन जस्ट पुश इट अप and take out your lip balm, use it, keep it back, and then just slide it down and hang it to your favorite bag. देखिए इस तरीके से ये लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगेगा ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव टू मेक अ मैजिक सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले हमें मैजिक सर्कल बनाना है। आई एम यूजिंग ब्राउन कलर यार्न फर्स्ट। पहले मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ द वे आई मेक माई मैजिक सर्कल। यू कैन मेक योर मैजिक सर्कल इन विच एवर वे कन्वीनियंट टू यू। मैं इस तरीके से अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ। अगर आपको मैजिक सर्कल बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप चेन 2 करके फर्स्ट वाली चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो chain 1 to secure the magic circle, and now we need to make 6 single crochet stitches in the magic circle. तो हमें 6 single crochet stitches बनाने हैं magic circle में। Go in, yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops, yarn over, pull through both of them. So here we have made our first single crochet stitch, and I'll be adding a stitch marker to the stitch. It's always good to add a stitch marker to the first stitch so that you know that is the stitch you have to slip stitch in. तो हमेशा बेटर होता है अगर पहले वाले स्टिच पे आप स्टिच मार्कर लगा दो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने वही वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच, दिस इज़ द सेकेंड, ये दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच है, 3 4 5 एंड 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लिए। Now I'll close the magic circle, take out the stitch marker and slip stitch to the first stitch and join. तो ये जो stitch है जहाँ हमने stitch marker लगाया था उस वाली stitch पे slip stitch करके हम join कर देंगे। So this completes our round number 1. Let's begin with round number 2, chain 1, and in this round we need to place 2 single crochet stitches in each of the following stitches that we have, but we'll work only in the back loops. अब हम सिर्फ back loops पे काम करेंगे। I know this is a dark color and it's difficult to see, but when you're working with your yarn you know that this is the front loop and the side that's away from you is the back loop. So we have to work only in the back loops now. अब हमें सिर्फ back loops पे काम करने हैं। जो loop आपकी opposite में आ रही है वो आपको उसमें काम करना है और हमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हर एक स्टिच में करते जाना है। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द सेम स्टिच वेयर आई डिड द स्लिप स्टिच। आई विल गो इन द बैक लूप ऑफ द स्टिच एंड आई विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच and I'll be adding my stitch marker here. तो ये पहली स्टिच है राउंड की, तो मैं इसमें स्टिच मार्कर ऐड कर रही हूँ। Another single crochet stitch in the same stitch. तो उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच मैंने कर दिए, 2 बना दिए, 2 in the next stitch. नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, फिर से नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2, 2 single crochet stitches in the next stitch, 1 and 2 single crochet stitches in the next stitch, 1 and 2 single crochet stitches in the last stitch, 1 and 2. So you'll have a total of 12 single crochet stitches when you finish the round. So now I'll remove the stitch marker and I'll slip stitch to this stitch and join. तो इस वाली stitch से हम slip stitch करके इसे join कर देंगे. This completes our round number 2. Let's start with round number 3, chain 1. Again we are working in the back loops. फिर से हम back loops पे काम करेंगे. We'll go in the first stitch, make a single crochet stitch. In the next stitch we need to make 2 single crochet stitches. So we are doing an increase on every second stitch, and it's better to add the stitch marker to the first stitch. तो पहली वाली stitch पे stitch marker लगा देंगे. Then 1 single crochet stitch into the next, 2 single crochet stitches into the next. तो हम हर दूसरी stitch पे increase कर रहे हैं, तो हर दूसरी stitch में हमने 2 single crochet stitches करने हैं, 1 in the next, 2 in the next. This is the pattern for this round, 1 2 1 2 1 2. तो यही पैटर्न है इस राउंड का। तो 1 सिंगल क्रोशे स्टिच और नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, और हम बैक लूप में सिर्फ काम कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग ओनली इन द बैक लूप्स। देन अगेन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, 2 single crochet stitches into the next, 1 single crochet stitch into the next,
2 single crochet stitches into the last stitch, and by the end of round number 3 you must have a total of 18 single crochet stitches. तो इस राउंड के एंड में हमारे पास 18 single crochet stitches हैं. Now I'll remove the stitch marker and slip stitch to the stitch and join. तो जिस stitch में हमने stitch marker लगाया था उस पर slip stitch करके हम इसे join कर देंगे, and we'll chain 1 and fasten off. chain 1 करके fasten off कर देंगे. यहाँ पे हमने yarn को कट कर देना है. और अब हमें काम करना है ये जो फ्रंट लूप्स बची है हमारी, ये जो फ्रंट लूप्स हमारी रह गई हैं, अब हम इनमें काम करेंगे. सो नाउ वी हैव टू वर्क इन द फ्रंट लूप. द yarn and attach it to the center here. You can see from the center we'll start working. I know it's really hard to catch it on the camera, but you can see these front loops. Now we are going to work on the front loop. So from the center we'll start from here, from the first front loop, and we'll go around like this, and then we'll go around like this. So we have 2 rounds of front loops here, so we'll work in those. So let's make a slip knot and add our yarn here. तो यहाँ पे हम slip knot बना के अपनी yarn को add कर देंगे. तो मैं पहले ये first जो यहाँ पे front loop मुझे दिख रही है, किसी भी front loop में आप join कर सकते हो इसे. We'll attach it and chain 1 to secure. And now chain 2 and slip stitch in the same front loop. उसी same stitch में slip stitch करके join कर देंगे. Then we'll chain 3 again, 1 2 3, and slip stitch in the next front loop. next front loop में slip stitch करेंगे. chain 3, slip stitch in the same front loop. chain 3, slip stitch in the next front loop. chain 3, slip stitch in the same front loop. chain 3, slip stitch in the next front loop. chain 3, slip stitch in the same front loop. chain 3, slip stitch in the next front loop. chain 3, slip stitch in the same front loop. chain 3, and we'll slip stitch in the stitch from where we started. तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, और ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है. Now we'll just go into the next front loop here of the next round. next round के front loop में जाएंगे, slip stitch कर देंगे यहाँ पे. we'll slip stitch here, chain 3, slip stitch in the same stitch, chain 3, slip stitch in the next stitch, chain 3, slip stitch in the same stitch, chain 3, slip stitch in the next stitch, and we need to follow this until we complete the round. chain 3, slip stitch in the same stitch, chain 3, slip stitch in the next stitch. तो इसी तरीके से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है. chain 3, उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर chain 3, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, chain 3, उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, chain 3, नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. इस तरीके से हम सारी फ्रंट लूप्स में ये स्टिचेस कर देंगे. chain 3, slip stitch in the same stitch, chain 3, slip stitch in the next stitch. तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. ये पूरा राउंड मैं कंप्लीट कर दूँगी, और अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि
सनफ्लावर का सेंटर पोर्शन इस तरीके से ये बन रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये कैमरा में नहीं आ रहा है इतने अच्छे से, बट तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड द राउंड एंड आई विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच फ्रॉम वेयर दिस राउंड स्टार्टेड एंड आई विल जॉइन। तो ये जो पहला इस राउंड का जो पहला फ्रंट लूप था जहाँ से हमने ये वाला राउंड स्टार्ट किया था, उसी पे स्लिप स्टिच करके हम इसे जॉइन कर देंगे। एंड नाउ चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे। एंड नाउ वी हैव टू वीव इन ऑल दीज एंड्स दैट वी हैव। तो ये जो हमारे पास ये यार्न टेल्स है, यार्न एंड्स है, इन्हें हम वीव इन कर देंगे। ये देखिए, ये 1 2 3 4 इनको वीव इन कर देंगे। तो इसको मैं बैक साइड पे लाके नॉट बांध के वीव इन कर दूँगी। मैं इसको पुल कर लेती हूँ। जो रॉन्ग साइड है, ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे एक तो ऑलरेडी हमारे पास, दूसरी को भी यहीं पुल कर देंगे हम। So I'm going to take all my yarn tails at the bottom. एक और लास्ट है। Then we can just tie a couple of knots. And then cut the extra yarn that we have. तो जो भी एक्स्ट्रा होगी इसे हम कट कर देंगे। Make sure that you're making knots using all the yarn tails that we have. तो जितनी भी yarn tails है आप इसको properly यूज़ करके knots बना लीजिए ताकि कोई भी रह ना जाए, because हमें नहीं चाहिए कि हमारा खुल जाए फ्लावर। Now we can just cut the extra yarn that we have. तो ये जो भी extra yarn है इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर का सेंटर पोर्शन रेडी हो गया है। आवर सेंटर पोर्शन इज़ रेडी ऑफ द फ्लावर। नाउ वी जस्ट नीड टू मेक द पेटल्स। अब हमें पेटल्स बनानी है। सो लेट्स टेक आवर येलो कलर यार्न एंड स्टार्ट मेकिंग आवर पेटल्स। तो अब मैं येलो कलर अटैच करने वाली हूँ। सो आई विल बी अटैचिंग माई येलो कलर यार्न नाउ। सो वील मेक अ स्लिप नॉट एंड देन अटैच आवर यार्न टू एनी ऑफ द स्टिचेस हियर। तो किसी भी स्टिच में, यहाँ पे हमारे पास 18 स्टिचेस हैं टोटली, हम किसी भी स्टिच में इसे अटैच कर देंगे। सो जस्ट गो एंड pull the slip knot and chain 1 to secure. Now we'll start making our petals. अब हम petals बनाएंगे। So we need to chain 3 for the petal. When we start a petal, we need to chain 3. We have already chained 1 here. So we'll chain 2 more. तो total हमें 3 chains चाहिए petal start करने के लिए। तो ये हमारी 3 chains बन गई। Now in the same stitch, we need to make 2 trebles. तो इसी same stitch में हमें 2 treble crochet stitches बनाने हैं, 2 treble crochet stitches बनाने हैं। So for the treble we need to yarn over twice. 2 बार yarn over करेंगे, 1 and 2. Go into the same stitch. उसी same stitch में जाएंगे, yarn over करके loop pull करेंगे, yarn over and pull up a loop. You will have 4 loops on your needle. ये देखिए हमारे पास 4 loops है। yarn over pull through 2, yarn over करके 2 में से निकालेंगे, yarn over pull through 2, फिर से 2 में से निकालेंगे, yarn over pull through 2, फिर से 2 में से निकालेंगे। So here we have done our treble crochet stitch. We'll work one more treble crochet stitch in the same stitch. उसी same stitch में एक और treble करेंगे। और ये देखिए अब ये जो 2 loops हैं इनमें हमने picot बनाना है। We need to make a picot here. So we'll chain 1, go back in these 2 loops and slip stitch to make the picot. We'll work 2 more trebles in the same stitch. उसी same stitch में 2 और treble crochet stitches बनाएंगे, 1 and 2, chain 3, 1 2 3 and slip stitch in the same stitch. उसी same stitch में slip stitch कर देंगे। ये हमारी petal बन के रेडी हो गई, देखिए। So 1 petal is done. Now slip stitch on to the next stitch. Next stitch में slip stitch करेंगे and slip stitch into the next stitch. Next stitch में slip stitch करेंगे और यहाँ पे अपनी next petal बनाएंगे. So we'll work our petal here. Chain 3, 2 trebles in the same stitch, 1 2 and when you're finishing the stitch just keep your thumb there because we need to make a picot here. तो यहाँ पे thumb रख लेंगे तो आपके लिए easy हो जाएगा picot बनाना. Chain 1,
Go back into these 2 loops and slip stitch. 2 more trebles in the same stitch. उसी same stitch में 2 और treble crochet stitches बनाएंगे. 1 and 2. Chain 3, 1, 2 and 3 and slip stitch in the same stitch. उसी same stitch में slip stitch कर देंगे. नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच. एक और स्लिप स्टिच नेक्स्ट वाली में करेंगे. स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच एंड चेन 3, 2 trebles, chain 1 and go into these 2 loops and slip stitch to make the picot. 2 more trebles in the same stitch. 1, 2, chain 3, 1, 2, 3 and slip stitch in the same stitch. And this is the pattern for the petals. तो ये सेम पैटर्न हम सारी पेटल्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे. स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. देन स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे एंड फिर से अपना पेटल बनाना शुरू करेंगे. तो यही सेम पैटर्न हमने यूज़ करने हैं सारे पेटल्स बनाने के लिए. सो वी हैव टू यूज़ द सेम पैटर्न फॉर ऑल द पेटल्स. चेन 3, 3 चेन्स बनानी है. 2 ट्रेबल्स बनाने हैं. यू हैव टू मेक 2 ट्रेबल क्रोशे स्टिचेस. फिर चेन 1 करके पीको करना है. चेन 1 एंड मेक अ पीको. 2 और ट्रेबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. 2 मोर ट्रेबल्स इन द सेम स्टिच. 1, 2 चेन 3 एंड स्लिप स्टिच. चेन 3 करके उसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे. फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 more slip stitch into the next में एक और slip stitch and अपनी एक नेक्स्ट पेटल वहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू मेक ऑल आवर पेटल्स. आई विल कंप्लीट मेकिंग ऑल द पेटल्स एंड देन आई शो यू हाउ इट लुक्स. तो इसी तरीके से आपने पैटर्न यूज़ करके सारी पेटल्स बनानी है. मैं बाकी की बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि फ्लावर कैसा लग रहा है. सो आई हैव मेड ऑल द पेटल्स. मैंने सारी पेटल्स बना लिए एंड नाउ आई स्लिप स्टिच इन द स्टिच वे वी स्टार्टेड मेकिंग द पेटल. तो जहाँ से हमने ये पेटल पहली वाली बनाई थी वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके इसे जॉइन कर दूँगी. एंड नाउ विल चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. तो अब हमें चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देना है. जस्ट टाइटन इट अप. इसको थोड़ा सा टाइटन कर देंगे एंड देन वी कैन वीव इन यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल. टेपेस्ट्री नीडल की मदद से इसे वीव इन कर देते हैं. अब थोड़ा सा वापस इसी तरीके से थोड़ी स्टिचेस में एंड देन वी कैन जस्ट कट दी एक्स्ट्रा यार्न दैट्स लेफ्ट. तो जो बची हुई या एक्स्ट्रा यार्न होगी उसको हम कट कर देंगे. ये हो गया. अब ये देखिए ये भी यार्न टेल है. इसको मैंने साथ में स्टिचेस के साथ ही इसके ऊपर काम कर दिया था और इसको वाली को भी हम कट कर देंगे. और ये देखिए ये इसके पेटल्स को हम थोड़ा शेप कर देते हैं फिंगर्स से. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. 9 petals as we had 18 stitches and we slip stitched in between and now we have a total of 9 petals and here this is how our sunflower is looking. ये देखिए इस तरीके से हमारा sunflower दिख रहा है. Now let's start making the bottom portion. अब bottom portion बनाना शुरू करेंगे हम. So we need to make a magic circle for that. तो पहले magic circle बनाएंगे. So I've wrapped the yarn. I'm holding it with my thumb and middle finger. Placing the needle
under the first loop and I'll just pull the second loop forward, slide it off my finger and chain 1 to secure. तो मैं इस तरीके से अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ. आपको जो वे कन्वीनियंट लगे मैजिक सर्कल बनाने के लिए आप वो वाला वे यूज़ कर सकते हो. Now we need to make 6 single crochet stitches in the magic circle. तो हमें 6 single crochet stitches बनाने हैं magic circle में. Go in, yarn over, pull up a loop, yarn over and pull through both the loops. This is the first stitch of the round and I'll be adding my stitch marker here. तो पहले वाले स्टिच में मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया. We need a total of 6 single crochet stitches. So this is the second one. हमें total 6 single crochet stitches चाहिए. 3, 4, 5 and 6. तो यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लिए. Now I'm just going to pull the yarn tail and close the magic circle. मैंने magic circle को close कर दिया है. And now to the first stitch where I added my stitch marker, we have to just go in and slip stitch here. तो पहली वाली जो स्टिच थी जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करके हम इसे जॉइन कर देंगे. This completes our round number 1. Let's start with round number 2. Chain 1. We need to place 2 single crochet stitches in each of these following stitches. तो ये जो stitches है हमने हर stitch में 2 single crochet stitches place करने हैं. And I'll be working over the yarn tail. तो yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ मैं. 1 and this is the first stitch of the round, so I'll be adding my stitch marker to the stitch. मैंने first वाली stitch पे stitch marker लगा दिया है. We need to make 1 more single crochet stitch in the same stitch. उसी same stitch में एक और single crochet stitch बनाएंगे. 2 single crochet stitches into the next. 1 and 2. 2 single crochet stitches into the next. 1 and 2. 2 single crochet stitches into the next. 1 and 2. 2 into the next. तो हर एक स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जा रहे हैं. By the end of this round we must have a total of 12 single crochet stitches. तो इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगे. नेक्स्ट में 2 करेंगे. 2 into the next and let me count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So we have completed doing 12 single crochet stitches. Now I'll just remove the stitch marker, slip stitch to the first stitch and join. तो पहले वाले से slip stitch करके हम इसे join कर देंगे. Now chain 1 and now we need to work in the back loops. तो अब हमें back loops में काम करना है. This is the front loop and this one is the back loop. We need to work only in the back loops now and we'll place 1 single crochet stitch in each of the back loops of the stitch. तो इसमें हम हर stitch में back loop में हर stitch की back loop में एक single crochet stitch करेंगे. This is the first stitch, so we'll add our stitch marker here. 1 single crochet stitch into the next stitch in the back loop. 2 in the next. 3 in the next. 4 in the next. 5 in the next. 6 7 8 9 10 11 and 12. It's better to count so that we don't miss any stitch or we don't do an extra stitch. So it's better to count. It's not a big number. So to the first stitch we will slip stitch and join. तो पहले वाली stitch पे slip stitch करके हम join कर लेंगे. Chain 1 and now from this round we need to make half double crochet stitches in each of the following stitches. तो हर एक stitch में हम एक half double crochet stitch करेंगे. Yarn over, go into the stitch and we are going into both the loops now. दोनों loops में जा रहे हैं हम. Pull up a loop, you'll have 3 loops. Yarn over, pull through all the 3 loops. And this is the first stitch, so I'll be adding my stitch marker here. Anyhow, I'm going to count the stitches, but it's better to add the stitch marker so that you know that you're going to slip stitch in this stitch. हमेशा better होता है पहले वाले में stitch marker लगाना. So this is the first half double crochet stitch. We have to place 1 half double crochet stitch in each of these 12 stitches. हर एक stitch में हमें एक half double crochet stitch करना है. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच, पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देंगे. Chain 1, and we have to repeat this round until you reach your desired size. So if you're using a bigger lip gloss, then you might have to crochet more rounds, and if you have a smaller one, then you might have to do less number of rounds. तो अगर आपको लॉन्ग अपना लिप बाम की जो लिप ग्लॉस होता है उसके लिए आपको बनाना है, तो आपको यही जो राउंड है जो अभी हमने किया इसको ज़्यादा टाइम रिपीट करना पड़ेगा. अगर आप छोटी लिप बाम के लिए कर रहे हो तो आपको कम टाइम रिपीट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द राउंड दैट यू हैव टू कीप रिपीटिंग. आई शो यू वंस मोर how to do that. Chain 1 and 1 half double crochet stitch in each of the following stitches. तो बस एक एक half double crochet stitch हर एक स्टिच में हमने करना है. टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस, एंड देन पहले वाली से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देना है. सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Take out your stitch marker, slip stitch to the first stitch and join. So you have to repeat this until you reach your desired length. तो इसको इसी राउंड को आपने रिपीट करना है जब तक आप desired length आपको नहीं मिलती है. So I'll complete the length that I want and then I'll show you what to do next. तो मैं जितना मुझे बढ़ा चाहिए मैं उतनी रोज़ राउंड्स रिपीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है. तो यहाँ मैंने 7 राउंड्स हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस के किए हैं. आई हैव डन 7 राउंड्स ऑफ हाफ डबल क्रोशे स्टिच एंड दिस इज़ द परफेक्ट साइज दैट आई वांट. एज आई शो यू माई लिपस्टिक, as the size of my lipstick is exactly the same and I don't want this to be longer, so I'll be stopping here. But if you have a longer lip gloss you can do more rounds, it's totally up to you. तो आप और rounds कर सकते हो अगर आपके पास ये बड़ी वाली lip gloss है, आपको lip gloss के लिए चाहिए तो, because as you see it goes in perfectly, it fits and just a slight push and it comes out. So I'll be stopping this round here. तो यहाँ पे मैं इसको stop करूँगी. And now we have to make chains. अब हमें chains बनानी है. So I'll be chaining around 30 and then I'll be seeing that whether it's fine or not. तो 30 chains हम बनाएंगे पहले और फिर हम देखेंगे कि ये हमारे लिए इसकी लेंथ सही है कि नहीं. So I'll start making 2, 3, 4, 5, 6, 7. मैंने यहाँ पे 40 chains बना लिए. 30 मुझे थोड़ी कम लग रही थी. So I've made 40 chains. एंड नाउ विल चेन 1 एंड फासन ऑफ लीविंग अ लॉन्ग टेल. चेन 1 करके फासन ऑफ करेंगी, थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ेंगे बिकॉज इसी को हम यूज़ करेंगे दूसरे साइड पे इसे अटैच करने के लिए. सो वी नीड टू यूज़ दिस, वी नीड अ लॉन्ग टेल सो दैट वी कैन यूज़ इट टू अटैच इट टू द अदर साइड ऑफ द बॉटम पार्ट. नाउ वी नीड टू पुट इट थ्रू द फ्लावर एंड देन वी नीड टू अटैच इट टू द बॉटम पार्ट. सो वील टेक अ टेपेस्ट्री नीडल एंड वील थ्रेड इट. तो ये जो हमने यार्न टेल छोड़ी है इसी को हम टेपेस्ट्री नीडल के थ्रू थ्रेड कर देंगे. एंड नाउ वी नीड टू गो थ्रू द फ्लावर. सो फर्स्ट वील गो इन फ्रॉम द बैक साइड. ये फ्लावर का बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है. हम पहले बैक साइड से बाहर आएंगे और फिर फ्रंट से अंदर की तरफ जाएंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो उसका सीधा हिस्सा ऊपरी भाग उसका सामने दिखता रहे. हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए. सो फॉर दैट वी नीड टू go in. So here we'll find a spot from where we can put our needle in. तो देखिए जहाँ पे आपको स्पॉट लग रहा है कि जहाँ से आप अपनी नीडल को ईजिली इसके थ्रू डाल सकते हो, क्योंकि हमें ये फाउंडेशन चेन भी इसके थ्रू पुल करनी है. सो वी नीड अ स्पेस.
सो ईजिली इससे पुल हो जाए उस तरीके का स्पॉट ढूंढिएगा. वंस दिस इज डन वी हैव टू गो इन फ्रॉम द टॉप पोर्शन एंड कम एट द बॉटम. तो इस तरीके से इस तरफ देखते हैं कोई पार्ट है यहाँ पे. हाँ ये दिख रहा है मुझे, ये देखिए हल्का सा पार्ट ये दिख रहा है, ये देखिए. सो विल गो इन फ्रॉम हियर, विल गो इन फ्रॉम हियर. ये देखिए जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, होल दिख रहा है यहाँ पे. विल गो इन फ्रॉम हियर एंड विल पुल इट थ्रू लाइक दिस. ये देखिए क्योंकि फाउंडेशन चेन है तो अगर वहाँ पे स्पेसिंग नहीं होगी तो ये फाउंडेशन चेन उसके थ्रू नहीं आएगी और उससे बहुत प्रॉब्लम होगी आपको पुल करने में. और उससे क्या होगा, आपके स्टिचेस खिंचेंगे. और ये गलती मुझसे पहले एक बार हो चुकी है. मैंने जब एक बार पहले बनाया था तो मैंने ये ध्यान नहीं रखा था इस चीज़ का और मैंने ज़ोर से उसे पुल कर दिया था और फिर मेरी सारी स्टिचेस उसमें से खिंच गई थी. तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप ध्यान से उससे पहले पुल करके देखिए कि वहाँ पे स्पेसिंग बराबर है, आपकी फाउंडेशन चेन उसके थ्रू ईजिली चली जाएगी. तो वहाँ पे आपने इसको डालना है. सो वंस दिस इज़ डन वी हैव टू अटैच इट टू द अदर साइड. तो ये देखिए ये यहाँ पे ये इस साइड पे ये यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग. तो हमें इसके ऑपोजिट साइड में ये स्ट्रिंग अटैच करनी है. सो वी नीड टू अटैच दिस टू द ऑपोजिट साइड. तो ऑपोजिट्स में ये जो स्टिचेस हैं इसके थ्रू हम अपनी नीडल को डाल के यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे. और ये हमने सिर्फ स्टिच जहाँ पे हमारी फाउंडेशन चेन स्टार्ट हो रही है बस वहीं तक हमें इसे अटैच कर लेना है. सो आई बी गोइंग इन थ्रू द फाउंडेशन चेन एंड देन थ्रू द स्टिच ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और निकले नहीं और खींचे भी नहीं. सो वी नीड टू अटैच इट प्रॉपर्ली हियर. नाउ आई जस्ट मेक कपल ऑफ नॉट्स. एक दो नॉट्स बना लेंगे ताकि ये और भी अच्छे से सिक्योर हो जाए. सॉरी I'll make another knot here. एक और नॉट मैं बना लूँगी ताकि पूरी तरीके से सिक्योर हो जाए. That's it. Now we can just weave in some of the stitches that we have here. तो थोड़ी सी stitches के बीच में जाके हम इसे weave in कर देंगे. थोड़ी सी यहाँ पे जो स्टिचेस हैं इसके बीच में भी जाके हम इसे वीव इन कर देंगे. सो वंस यू फील दैट इट्स सिक्योर इनफ यू कैन कट द एक्स्ट्रा यार्न. तो आपको लगेगा कि ये सिक्योर है, उसके बाद हम इसे एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे. और ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है. वी हैव टू जस्ट फिक्स दिस, शुड बी इक्वल. ये देखिए ये हमारा फ्लावर और ये हमारा लिप बाम का कवर. सो व्हेन यू नीड टू पुट द लिप बाम यू हैव टू जस्ट पुट इट इन. देखिए इस तरीके से आप अपनी लिप बाम को अंदर डालेंगे एंड देन यू हैव टू जस्ट पुल द स्ट्रिंग दैट वी हैव मेड एंड कवर इट. एंड हियर यू कैन हैंग इट टू योर बैग. इस तरीके से आप अपने बैग पे इसको लगा सकते हो. ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है ये. दिस इज़ हाउ इट इज़. आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.